Hello children, let us continue Maths class 5 chapter number 12 Smart Charts. Our today's topic is on page number 165. Here it is the topic given hot and cold. Before we proceed to the topic, here in this page you can see, I show you children, here are two graphs are given or charts are given, but what do we call this graph? So these graphs are called bar graphs or bar charts. सो इसमें आप देख सकते हो कि बार मीन्स ऐसे रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशंस आर देयर. So what is bar graph? So we can say that a bar graph is a graphical display of data using bars of different height. अब bars इनको ये जो है आप वर्टिकल रेक्टेंगल्स देखते हो, दीज आर कॉल्ड बार्स. ओके, अब बार्स बनाने के लिए एक पैटर्न है, मेथड है. दैट मीन्स ऑल बार्स शुड बी ऑफ सेम विड्थ. सबकी विड्थ सेम होनी चाहिए. और वो कहाँ पे होना चाहिए? एक्चुअली टू लाइन्स आर देयर. वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वन इज वर्टिकल line. So on horizontal line bars are drawn, जिसकी उसका जिस नंबर के साथ वो बार मैच होता है उस नंबर तक ये बार बनाया जाता है. और नंबर्स कहाँ पे लिखने हैं? यहाँ पे. ये जो वर्टिकल लाइन है उस पे नंबर्स लिखे जाते हैं. एक्चुअली चिल्ड्रन यू विल लर्न इन स्टैंडर्ड 6. इसे कहते हैं वाई एक्सिस और इसे कहते हैं एक्स एक्सिस. सो एक्स एंड वाई. एक्स इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वाई इज वर्टिकल लाइन. तो ऑन एक्स एक्सिस ओनली दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस और रीडिंग्स और लिस्ट इज गिवन, एंड ऑन वाई एक्स there are some numbers. For that we have to draw graphs. So here in this graph, first one we can see that clearly we can observe that it is some temperature graph. So what is given on x-axis or horizontal line? So here it is different temperature of 4 different cities are given. That is, first one is Delhi, then Shimla, then Bangalore and Jaisalmer. So all these 4 cities are there. On this y-axis temperature in degrees Celsius is given. So now first we read, for example, Delhi. So here it is given 33 degrees Celsius. So here it is 30 and 3 lines more, that is 33 degree. Same way here it is 22 degree. तो जो डिग्री के साथ उस वो मैच होता है वहाँ पे पहले टिक मार्क करके फिर उसे ऐसे बार जैसा रेक्टेंगल बनाया जाता है. और रेक्टेंगल फिर से मैं आपको बता दूं कि सारे रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो सेम होनी चाहिए. सिर्फ उसकी हाइट अपने रीडिंग के साथ कम या ज़्यादा हो सकती है. ओके, सो here these are two bar graphs. These show the highest temperature in degrees Celsius in 4 cities on the 2 different days. तो एक जो हमें दिया है 1 जून के लिए और एक दिया है 1 दिसंबर के लिए टेम्परेचर. The cities are Delhi, Shimla, Bangalore and Jaisalmer. तो यहाँ पे is reading, according to this reading we have to answer some of the questions which are given here. Now find out from the bar chart which city is the hottest on 1 जून. अब 1 जून पे कौन सा सिटी है जो हॉटेस्ट है? सो हियर इट इज़ द 1 जून और टेम्परेचर देखो 33, 22, 28 and 38. So obviously 32 is the highest temperature among these 4. So our answer will be Jaisalmer.
The second one is given, which city is the coldest on 1st December. अब 1st December का टेम्परेचर यहाँ पे दिया है, तो कोल्डेस्ट कौन सा है, देखो 23 दिल्ली का, शिमला का 10, बेंगलोर का 24 एंड जैसलमेर का 25. सो ऑब्वियसली शिमला टेम्परेचर is the lowest. That means Shimla is the coldest city on 1st December. So that one is the next answer. Now one more question is given, which city shows little change in temperature on the 2 days, 1st June and 1st December. That means city में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस किस में है, तो हियर इट इज़ दिल्ली, दोनों का टेम्परेचर देखो 33 एंड 23, सो अराउंड 10 डिग्री का डिफरेंस. यहाँ पे है दूसरा शिमला 22 एंड 10, सो दैट इज़ 12 डिग्री का डिफरेंस है. देन बेंगलोर 28 एंड 24, सो ऑब्वियसली इट इज़ 4 डिग्री का डिफरेंस है. और यहाँ पे हैं लास्ट वन जैसलमेर 38 एंड 25, सो इट इज़ 13 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है. तो सबसे कम डिफरेंस किस में आएगा, ये बेंगलोर में. ओके 28 एंड 24, दैट इज़ 4 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा. सो लाइक दिस चिल्ड्रन, अगर बार ग्राफ दिया है उसके ऊपर से कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हैं, सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द answer. Okay, let us move to the next topic. This is given, rabbits in Australia. Earlier there were no rabbits in Australia. Rabbits were brought to Australia around the year 1780. तो 1780 तक ऑस्ट्रेलिया में रेबिट नहीं थे, तो उसके बाद वो लाया गया. एट दैट टाइम देर वर नो एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया विच एट रेबिट. तो तब ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई एनिमल नहीं था जो रेबिट्स को खा सके, तो ऑब्वियसली रेबिट की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी. सो द रेबिट्स बिगेन टू मल्टीप्लाई एट अ वेरी फास्ट रेट. इमेजिन व्हाट दे डिड टू द क्रॉप्स. अब बहुत ज़्यादा रेबिट बढ़ने लगे तो ऑब्वियसली क्रॉप्स का क्या होता होगा कि बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते होंगे, खेतों में घुस जाते होंगे और वो ख़राब करते होंगे, खाना वो क्रॉप्स जो है वो खा जाते होंगे, लाइक दैट. द टेबल शोज हाउ रेबिट्स ग्रू एवरी ईयर. सो हियर इट इज़ अ टेबल गिवन. Start 10 rabbits were brought, and then on first year it became 18, then on second year 32, third year 58, fourth year 108 and so on. तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो ऐसे बढ़ रही है. Now based on that some of the questions are given. After each year the number of rabbits was, एक साल के बाद नंबर ऑफ रेबिट्स कितना होगा, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रेबिट्स इन द लास्ट ईयर, डबल द नंबर इन द लास्ट ईयर, 8 मोर देन द नंबर इन द लास्ट ईयर, एंड मोर देन डबल द नंबर ऑफ लास्ट रेबिट्स इन द लास्ट ईयर. तो करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है, ये. एक्चुअली डबल नहीं हो रहा लेकिन डबल से थोड़ा ही कम. फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में देखो स्टार्टिंग में 10 है तो सेकेंड ईयर में 18 हुए. दैट मीन्स फर्स्ट ईयर का डबल होगा 20, लेकिन 20 से थोड़ा कम मीन्स लिटल लेस देन डबल. द नेक्स्ट वन इज गिवन. एट द एंड ऑफ ईयर 6 द नंबर ऑफ रेबिट्स was closed to dash. That means अगर यहाँ पे देखो 4th ईयर पे 108 है तो 5th ईयर पे अराउंड 200 होना चाहिए, क्योंकि डबल से थोड़ा ही वो कम रहता है. ओके तो 108 का डबल होता है 216. तो मोर देन 200 रेबिट्स वेर
देर ऑन 5th ईयर। और 6th ईयर पे कितने होंगे? 200 समथिंग है, तो नेचुरली 6th ईयर पे 400 समथिंग हो जाएंगे। तो अराउंड 400 रेबिट्स होंगे 6th ईयर पे ये। ओके, आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रेबिट्स क्रॉस 1000? तो 1000 कितने साल के बाद उसका होगा? ऑब्वियसली 5th 6th 7th ईयर पे हो सकेगा, क्योंकि 5th ईयर पे अराउंड 200 होगा, 6th ईयर पे अराउंड 400 होगा, मोर देन 400। 7th ईयर पे 800 समथिंग होगा। ओके, डबल अगर करेंगे तो 8th ईयर जब आएगा तब मोर देन 1000 मीन्स 1500 समथिंग होगा, तो 7th ईयर पे ये होगा। सो 7 ईयर के बाद ये होगा। तो 1780 में लाए थे, तो 7 ईयर के बाद 1788 में ये क्रॉस हो जाएगा। Okay children, so this way we can find out the answers. That's it for today. Thank you and bye bye.